aspects of this evolving. What is clear is that the Pakistan army has activated and created a huge amount of violence. Baramulla is one of the sectors that has been activated with tensions and escalations, the maximum since the Pahalgam attack took place. We're at the line of control in Salamabad. It's one of the last outposts before the line of control. There are two houses here that were struck last night. We're going to try and be as sensitive as possible, but it's important for NDTV to capture some of this grief because the nation needs to know what this family has suffered tonight. Viewer, thanks for being on Wednesday night's India Matters. Operation Sindoor is definitely not over. You've just seen the breaking news on NDTV about India asking another official of the Pakistan High Commission to leave, possibly because of espionage or spying. And just like that, 1 month has passed since the Pahalgam attack. But this today isn't just about India and Pakistan. It is about those 26 people that we lost on this day last month. To the families shattered by what happened in Pahalgam and to the survivors who carry the weight of that dark day, this is for you. Today is exactly 1 month since the terror attack in Pahalgam that claimed the lives of 26 innocent civilians. A month since lives were turned to ash in seconds, since laughter was replaced by silence, since families were left staring at empty chairs, unopened doors, and futures forever altered. I've just returned after 3 weeks on the ground in Jammu and Kashmir. 3 weeks spent with the Army, the CRPF, the Jammu and Kashmir Police Special Operations Group, but most importantly, 3 weeks witnessing firsthand the grief, the numbness, and the sheer emptiness that this one act of cowardice has left behind. I personally cannot believe it's already been a month. There is no script for this kind of pain, no protocol for what families are going through. How does one even begin to mourn when there are no real answers, only echoes? To those who lost mothers, fathers, children, siblings, I want to say this. I saw you, I see you, I spoke to some of you. I heard the silence you didn't know how to fill, and I know that no words, none that I can say right now can ever be enough. But let me also tell you what I saw from the other side on the ground. I saw a machine awaken. I saw security forces with a clear, uncompromising resolve. I saw intelligence units working around the clock, even though they know deep inside that the structure failed on the 22nd of April. And I can say this with confidence that the hunt is on. The men who did this and those who sent them will be found. In the days that followed your tragedy, India launched its most aggressive non-war operation against Pakistan in living memory. Precision strikes, deep penetrations, a message delivered not just with words, but with fire. This isn't vengeance because no amount of fire can equal the price of 26 loved ones' lives. But it is clarity. I've been a national security reporter for 21 years now, viewer, and I can tell you something feels different. Something has changed in our politics, in our forces, in the Indian mind. We are done treating terrorism as a border problem, a law and order issue, or a diplomatic irritant every few months. The events of Pahalgam 1 month ago have shown that every act of terror will be met as an act of war. It's policy now. It is the cruelest tragedy that it took 26 innocent lives for this shift to happen. But it has happened, and it is now irreversible. Just like your tragedy is irreversible, India will never be the same again. I saw it firsthand, believe me, from the ground, from the line of control, in the homes of those who are meant to keep you safe in Pahalgam and other parts of Kashmir. To the families, today, a month later, my deepest condolences are always with you. I know closure is a weak word, a word that feels distant, perhaps even insulting right now. But you must know this. India has not moved on. We will not forget. And our security forces will not rest, not until those who bled Kashmir are brought to justice. My morning routine for the last month has involved speaking to my contacts on the ground first thing every morning to see if there's been any progress in the hunt
for those terrorists. Not one more life, not one more lie. Pahalgam will not be allowed to fade. It has become the line that divides what India tolerated and what it never will again. And we are very privileged tonight, a month after the Pahalgam attack, to be joined by Tage Taka. He is the brother of Indian Air Force Corporal Tage Hailiang, who was killed. He was one of the 26 people killed on the 22nd of April in Pahalgam. Tage bhai, pehle हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. We thank you for your brother's service, for the service of your family and your sacrifice. तागे भाई, एक महीने बाद भी आज आपके मन में क्या चल रहा है? सर वही है, अभी भाई तो गुजर गया है. बहुत दुख भरी घटना है. हम लोग विश्वास भी नहीं कर सकता है कि अभी वो उस दुनिया से चला गया है, अभी इस दुनिया में नहीं है, हम लोग का साथ में नहीं है बोल के. अभी भी मुझे तो लग ही रहा है कि ड्यूटी पर वो तैनात है, कि जब से वो ड्यूटी पर आपका जब से वो सर्विस में है था, हम लोग से तो कम थी मिलजुल थे, क्योंकि सबसे पहले तो ड्यूटी फर्स्ट, उसके बाद फैमिली सेकंड, ऐसे ही होते हैं. तो उस दिन भी क्योंकि अभी तक हम लोग बदन को दिखा नहीं है, तो जैसा कि अभी जब से वहां से आपका कोफिन में लाया है, उसको हम लोग खुला भी नहीं है, तो शायद खुलने से कुछ खराब भी बदन हो सकता है बोल के इसको हम छुआ भी नहीं है. जैसे थे ऐसा ही हम लोग उसको अंतिम संस्कार दिया है, पेंडल कर दिया है. तो अभी तक चेहरा को भी हम लोग ठीक से नहीं देख पाया है कि किस हालत में था. तो आतंकवादी ने इसको किस हालत में करके हम लोग को हमें परिवार का साथ में भेजा है, तो उसको भी हम लोग देखा नहीं है. तो भी अभी भी एक मन में यही है कि अभी भी वो हम लोग का साथ में है, बुला नहीं पा रहा है हादसा को. तागे भाई, एक महीना बीत गया है. मैं 3 हफ्ते के बाद वापस आया हूं कश्मीर से, और जब हम रिपोर्ट कर रहे थे पहलगाम में, हमने सुना कि आपके भाई तागे हाइलियांग ने पहलगाम में दूसरों की जान बचाई. क्या ये सच है? नहीं, वही सर, हम लोग भी उस घटना को तो आंखों देखा तो देखा नहीं है. तो बहू भी समय में तो ऐसा हाल था कि इससे भी कुछ पूछने का हालत में नहीं था. तो बहू भी अभी कुछ दिन से थोड़ा सा अभी वो भी स्टेबल हुआ है. तो एग्जैक्टली लोकेशन में कैसा हुआ था, क्या हुआ था, हम लोग किसी से भी पूछने का ये है नहीं, किसको पूछेगा बोल के ये था. तो अभी ऐसा है कि बहू जब से थोड़ा सा होश में आया है, तो कुछ बताने का लायक था. तो अभी हम बहू को पूछ के देखा है, तो वही था उसका साथ में आंखों देखा, वही था सामने में. तो बहू को पूछा है, तो कैसा कैसा करके एग्जैक्टली एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है बोल के बताया. तो बहू भी बता रहा है जो अभी जो बोले हैं. उन लोग का सर्विस में, डिफेंस सर्विस में, जो डिफेंस में आप आ जाता है, ट्रेनिंग होता है, इस समय में ऐसा उन लोग का डिफेंस में एक प्रोटोकॉल होता है कि करेक्ट, आप मैदान में जाओ या आप सिविलियन के साथ में जाने से सबसे पहले आप कुछ हादसा, कुछ घटना घटने से आप सबसे पहले सिविलियन को आप सेव करना है. अपना बदन से बचाव से पहले आप सिविलियन को सेव करना है, लास्ट में अपना आप को बचाना है बोल के उन एक प्रोटोकॉल, एक डिफेंस में एक होता है जी. तो इसका प्रोटोकॉल को बोला नहीं, निभाया है. तो बहू भी बता रहा था कि ऐसे जब घटना, जो फायरिंग करके ये सब आतंकवादी जब आ रहा था, तो वो तो बहू तो बेचारा, वो तो कभी ऐसा हादसा देखा नहीं है.
तो उसका आंखों देखा में आदमी को मारते आ रहा था, तो वो तो हालत में शोक के मारे खुद को ही संभाल नहीं सका है। तो बहू बता रहा है कि इस समय में हाजंग जो एकदम जोश दिखा के एकदम करेज दिखा के जो पब्लिक जो टूरिस्ट लोग थे उन लोग को वहाँ से ही निकालने में सहायता किया है। जो थोड़ा सा जैसा कि जो टूरिस्ट लोग जो अननोन क्या एग्जैक्टली खा रहा है क्या ना करे, ऐसे हादसा में ऐसे होते कि अपना खुद को खो जाता है, अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस समय में आदमी लोग को पब्लिक लोग को वो हौसला दे के यहाँ से आप लोग निकल जाने से ठीक है बोल के ऐसे सहायता दे ही रहा था। तो शायद आतंकवादी का उसका नज़र में आया होगा, ये शायद कुछ डिफेंस भी हो सकता है बोल के, तो पकड़ के इसको नमाया है। तो नमाने के बाद में इसका आई कार्ड को चेक किया है बोल के बोल रहे हैं। तो आई कार्ड को चेक करने के बाद में सीधा इसको शूट किया है। तो उसका आई कार्ड में तो ये एयरफोर्स का ये तो इसमें तो लिखा ही है। तागे भाई, आपके भाई बहुत ही बहादुर थे उस दिन, लेकिन जो 3 आतंकवादियों थे, जो टेररिस्ट थे जिन्होंने हमला किया था उस दिन, वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। ऑपरेशंस जारी है लेकिन वो अभी भी फरार हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर वही है, हम भी हाँ यहाँ में इंटरव्यू जितना भी यहाँ में हम ये मीडिया में इंटरव्यू दिया है, हम उस बात का मैं जिक्र किया हूँ कि हाँ भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च करके जितना भी टेररिस्ट का ये जो लॉन्च पैड है, कैंप है, सबको तो ये आपका ये डिमेज तो किया है, बर्बाद तो कर दिया है। और सुना है कि वहाँ का पाकिस्तान का ये जो आर्म फोर्स का जितना भी कुछ ये है इसको भी ज़्यादातर डिमेज किया है। ये सबको सुन के तो थोड़ा सा हाँ दिल में तो थोड़ा खुशी है कि हाँ कम से कम कुछ ना कुछ तो बदला तो लिया है। लेकिन अभी भी दिल में एक अधूरा सा पन है कि हाँ जो उस दिन जो पहलगाम में जो इंसिडेंट में जो टेररिस्ट जो शामिल थे, अभी तक उन लोग को खात्मा नहीं कर पा रहा है। Correct. इस बात का थोड़ा सा हम लोग का विक्टिम फैमिली के ओर से थोड़ा सा अभी भी एक अनसेटिस्फेक्शन है मन में। हम सोचता है कि इंडियन गवर्नमेंट और जितना भी हम लोग का होम डिपार्टमेंट है, डिफेंस ये सब है, और सबको थोड़ा सा आप जितना आप एफोर्ट कर सकेगा करके और जितना शामिल थे और सबको भी खात्मा कर देने से ठीक है बोल के मेरा तरफ से भी हम फैमिली एज ए विक्टिम फैमिली के नाते हम Correct. उसको मैं सोचता हूँ। और उसका वही है, ये अभी तक उन लोग को नहीं ढूंढ नहीं पा रहा है, ट्रेस नहीं कर पा रहा है बोल के मन में भी अभी भी एक थोड़ा सा ये है, एक सेटिस्फेक्शन एक नहीं हो के अभी हम लोग बैठा हुआ है। तागे भाई, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जिक्र किया अपने, उसके बारे में पूछना चाहूँगा मैं। आखिरी सवाल वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या लगता है आपको, क्या देश बदला है? क्या कुछ आपके परिवार के लिए थोड़ा सा क्लोजर मिला है? हाँ सर, मैं उन सब से ऑपरेशन सिंदूर से तो थोड़ा संतुष्ट हूँ। कम से कम जो पहलगाम का जो हादसा को उन लोग भी बदला तो लिया है, वही है जितना कर सका वो तो उन लोग का इंडियन गवर्नमेंट में भी हम लोग का और इंडिया डिफेंस और इंडियन डिफेंस भी करके किया है, बहुत सारा किया है। और सुना है कि हम लोग एग्जैक्टली कितना फिगर है हम लोग को भी आइडिया नहीं, जो लेकिन जो न्यूज़ में जो मीडिया में जो बताता है उन लोग को ही हम लोग सच मान लेते हैं। जैसे कि अभी मीडिया में बता रहा है कि आतंकवादी भी कितना ये 7 मई का जो उसमें जो अटैक में आतंकवाद भी लगभग 100 से ऊपर खात्मा किया बोल के बताया है। Yes. और सबको तो मैं न्यूज़ में देखा हूँ। और ये सब सुन के तो थोड़ा सा मन में तो थोड़ा सा शांति तो हुआ, तसल्ली तो हुआ है। और पाकिस्तान का सर ऐसा है कि उस दिन जो टीवी पर जो मैं न्यूज़ पर मैं देख रहा था कि टेररिस्ट को उन लोग जो नेशनल फ्लैग करके उन लोग जो ऑनर दे रहा है, मुझे तो पहले तो लग रहा था कि पाकिस्तान लोग सचमुच का टेररिस्ट से थोड़ा सा उन लोग भी इफेक्टिव है, जैसा कि भारत जो जैसा हम लोग टेररिस्ट से इफेक्टिव है तो उन लोग भी इफेक्टिव है बोल के ऐसा सुनने को मिला है। लेकिन इस दिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर से तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जैसा टेररिस्ट को ही उन लोग ऑनर दे के जितना भी उन लोग का जनेजा जैसा कि जो अंतिम संस्कार ये सब होता है,
इसमें देखा है कि जितना इसमें आपका पाकिस्तान का जो मिलिट्री का ऑफिसर लोग है सब इसमें शामिल है। और जैसा कि आप एम्बुलेंस में जो डेड बॉडी को ले जाता समय में भी उन लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाला भी सलूट Correct. कर रहा था। ये सब कुछ देख के तो लग ही रहा है कि उन लोग को आतंकवाद को उन लोग आतंकवाद नहीं समझता है, नहीं सोचता है। एक उन लोग का एक उसको क्या बोलेगा, एक रिवोल्यूशनरी, एक जैसा कि आप भरा आदमी मरा जैसा उन लोग ये सबको सलूट कर रहा है। तो ये सबको देख के तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तो कभी सुधरेगा भी नहीं। और उन लोग का उन लोग मिलिट्री का साथ साथ में उन लोग को आतंकवादी को भी उन लोग पाल रहा है, पाल पोस रहा है। तो जितना भी उन लोग न करने से भी हम लोग टेररिस्ट को नहीं पाल रहे, आतंकवादी को नहीं पाल रहे बोल के बोलने से भी तो टीवी में तो सबको तो दिखाई दे रहा है ऐसा है, कैसा मिलजुल के बैठा हुआ है सब। तो उसको तो लग के ये सब को देख के तो मुझे बहुत दुखी भी लग रहा है। एक कंट्री के नाते कैसा उन लोग एक आतंकवादी को पाल सकता है बोल के दुखी भी है। लेकिन भारत सरकार का जो एक्शन लिया है उनसे तो मेरा इसमें तो उसमें थोड़ा संतुष्ट तो हूँ, बहुत सेटिस्फाई लगा है। कम से कम कुछ तो रिप्लाई तो दिया है, कुछ जवाब तो दिया है। अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग की तरफ से भी हम लोग ऐसा करेंगे बोल के तो जवाब तो दिया है। जैसा कि आप जैसा कि उरी और एक क्या अक्सर उसका भी तो सर्जिकल स्ट्राइक जी, और ये सब एयर स्पेस ये सब स्ट्राइक ये सब करके देखा है। अभी इंडिया पहले जैसा नहीं है कि जैसा कि आप 9/11 सॉरी ये जो मुंबई हमला जो हुआ था उस समय में भी कितना हम लोग निर्दोष आदमी मरा है, इनोसेंट आदमी मरा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी इसका एक्शन नहीं लेके, तो इसमें एक गवर्नमेंट को भी एक सवाल, उन लोग को एक भी ये एक सवाल रहता है कि अरे किस लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको ये सब का हादसा को एक रिप्लाई नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहा है बोल के पहले था। लेकिन अभी जब से ये मोदी गवर्नमेंट जो आया है उन लोग को पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगर आप यहाँ में भारत में कुछ करेंगे तो हम लोग भी आपको जवाब मिलेगा बोल के ये सब दिखा रहा है। इसके लिए ये सबको देख के तो बहुत सेटिस्फाई लग रहा हूँ एक विक्टिम फैमिली के नाते ना। तो अभी भारत ऐसा है कि आप पाकिस्तान की ओर से कुछ भी करेगा तो फिर हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा जवान जो बॉर्डर में और ये जो डिफेंस लोग एयरफोर्स नेवी ये सब पूरा इसमें है, तैयारी में है। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर नहीं किया है बोल के सुनने से तो सुन के बहुत खुशी लगा है। क्योंकि अभी ये सबको सुन के पाकिस्तान भी अभी उनका एक धैर्य भेद किया कि अगर कुछ ना कुछ कर देगा तो इंडियन गवर्नमेंट की ओर से और भी उन लोग का एक्शन लिया जा सकेगा, लेगा बोल के उन लोग एक धैर्य में है अभी ना। ये सब सुन के तो बहुत खुशी हूँ, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि उन लोग का एयर टर्मिनल को बहुत जगह में बहुत ज़्यादा नष्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है। शायद उन लोग करने में थोड़ा समय लगेगा बोल के न्यूज़ में ऐसा बता रहा है। ये सब सुन के तो थोड़ा बहुत दिल में खुशी है। तागे भाई, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपके भाई तागे हाइलियांग के सेवा और उनके बलिदान के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। और हम इस घटना, इस स्टोरी, इस एंटायर सिचुएशन से हमारी नज़र कभी नहीं हटेगा, हम लगातार कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच तागे ताका, द ब्रदर ऑफ कॉर्पोरल तागे हाइलियांग, फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन India Matters.